السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ پاکستان نے حال ہی میں جو مختلف شہروں کے اندر دہشت گردی کی واقعات ہوئے ہیں، ان کے رسپانس میں افغانستان میں مختلف کارروائیاں کی ہیں۔ یہ اسٹریٹجک آپریشنز تھے، ایک کے نتیجے میں تقریباً 29 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پھر افغانستان کی طرف سے بلوچستان کے ایریا میں ڈرون سے در اندازی کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو ناکام بنایا گیا فورسز کی جانب سے، اور مختلف ڈرونز مار گرائے۔ پاکستان کی یہ جو مختلف کارروائیاں ہیں، جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اب خبر یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی یہ جو کارروائیاں ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کی حمایت کی ہے، اور ان کو پاکستان کے دفاع کا حق قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یورپی یونین نے بھی پاکستان کا جو موقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے، پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں سہولت کاری کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس موقف کی نہ صرف تائید کر چکی ہے بلکہ اس کے اوپر بڑا سخت ایک موقف بھی جاری کر چکی ہے۔ برطانیہ سے بھی کچھ ایسا ہی موقف سننے میں آیا، لیکن اب امریکہ کا خاص کر جو حالیہ کارروائیاں ہیں ان کو پاکستان کے دفاع کا حق قرار دینا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور عملی طور پر اس سے کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس کے لیے سید محمد علی صاحب، مظہر عباس صاحب، فخر درانی صاحب، بے نظیر شاہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، آپ سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا، یہ جو امریکہ کی طرف سے بیان آیا ہے اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے، اور کیا عملی طور پر بھی یہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے پاکستان کو؟ علینا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ بیان، لیکن یہ کانٹیکسٹ اور تسلسل میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سال اگست میں تقریباً افغان طالبان کو اقتدار سنبھالے ہوئے 5 سال ہو جائیں گے، اور آپ تینوں لیولز پہ دیکھیں کہ چاہے عالمی طاقتیں ہوں، چاہے علاقائی طاقتیں ہوں، چاہے کچھ باشعور طالبان کمانڈرز بھی اب افغان طالبان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں خصوصی طور پہ جو افغانستان ہے اور افغان طالبان کی جو پالیسیز ہیں ان کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تھی تلسی گبلد، انہوں نے تو ٹیسٹیمنی میں یہ تک کہا تھا کہ جس انداز میں اجلت اور ایل پلانڈ ڈپارچر ہوا تھا امریکی افواج کا بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں، اس کے نتیجے میں افغانستان دوبارہ سے ایک عالمی دہشت گردی کا مرکز بن گیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس کے جو خطرات ہیں اس کے پیش نظر امریکی افواج کو شاید دوبارہ افغانستان کا رخ کرنا پڑے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے آپ نے سنا ہوگا کہ کئی بار جو ان کے بہت بڑے پیمانے پہ جو اسلحے کے انبار بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور میں افواج چھوڑ کے گئی تھی، ان کی واپسی کا بھی تقاضا صدر ٹرمپ نے بھی کیا ہے، اور بلکہ جو ان کے وزیر دفاع ہیں یا سیکرٹری آف وار ہیں پیٹ ہیگسیٹ، انہوں نے تو انکوائری کال کی تھی پینٹاگون میں ان افسران کے خلاف جنہوں نے یہ امریکی افواج کا انخلا اتنا ایل پلانڈ انداز میں آرگنائز کیا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، پینٹاگون ہو، وائٹ ہاؤس ہو، تینوں جو پاور سینٹرز ہیں وہ افغانستان کو ایک تشویش کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ پھر ان کا جو اینول انٹیلیجنس اسیسمنٹ آئی تھی، جو کہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی مجموعی تھریٹ پرسپشن، اس میں دوبارہ سے دہشت گردی کو ایک بڑا امریکی سلامتی کے لیے خطرہ گردانا گیا تھا، اور اس میں ٹی ٹی پی کو، افغان طالبان کو، داعش کو اور القاعدہ کو ایک بڑا تھریٹ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے کہا گیا تھا، اور یہ چاروں تنظیمیں بدقسمتی سے دوبارہ یوں لگتا ہے کہ افغانستان میں اپنے پاؤں جما چکی ہیں۔ لیکن دو باتیں جو اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ چین میں بھی یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ ای ٹی آئی ایم جو ہے وہ افغانستان میں قدم جما رہی ہے، اور وہ سیکیانگ میں چین کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کارروائیوں میں ملوث ہے۔ دوسری جانب ایران میں داعش کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ حال ہی میں سینٹرل ایشیا کی جو دفاعی تنظیم ہے CSTO کہتے ہیں، اس کے سربراہ نے 2-3 دن قبل افغان بارڈر کا معائنہ کیا، اور انہوں نے بھی پاکستان کی طرح اب بارڈر کی فینسنگ شروع کر دی ہے۔
لیکن ابھی 2 دن قبل یہ بھی خبریں تھیں کہ ایران نے کچھ انلیگل افغان جو ایران کی جانب کراسنگ کی کوشش کر رہے تھے ان کو بھی انہوں نے ہلاک کیا تھا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز اور دلچسپ چیز جو ریسنٹلی سامنے آئی ہے کہ طالبان کے کئی جو صوبائی کمانڈرز ہیں اب وہ بھی کھل کر ببانگ دہل افغان طالبان پہ تنقید کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے اہم جو نام سامنے آ رہا ہے وہ بدخشاں کے افغان طالبان کے کمانڈر ہیں. انہوں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے کھل کر افغان طالبان پہ تنقید کی ہے کہ بی ایل اے، ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو جو کہ پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک کے خلاف حملوں میں ملوث ہیں ہمیں جگہ نہیں دینی چاہیے اور یہ افغانستان کے بھی مفاد میں نہیں ہے. تو ٹو کنکلوڈ، عالمی سطح پہ دیکھیں، علاقائی سطح پہ دیکھیں یا داخلی سطح پہ دیکھیں، ایک جامعہ اور مؤثر آوازیں اور تنقید افغان طالبان کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں ان کی دہشت گردی کی سرپرستی کے نتیجے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی موقف کی تائید بھی ہے اور آنے والے دنوں میں عین ممکن ہے کہ افغان طالبان اس کے نتیجے میں زیادہ سنجیدہ اور ذمہ دارانہ پالیسی کو کنسیڈر کریں. بے نظیر، آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا باقی جو عالمی فورمز ہم دیکھ رہے ہیں یا ممالک ہیں ان کی طرف سے پہلے تائید پاکستان کے موقف کی، اس کے بعد اب امریکہ کی طرف سے، کیا یہ امریکہ جو بول رہا ہے یہ خصوصی طور پر کوئی ان کی داخلی پولیٹکس یعنی بائیڈن ورسز ٹرمپ افغانستان کے معاملے کے اوپر چپکلش ہے، یا پھر واقعی سنجیدہ تشویش ہے افغانستان کے معاملے کے اوپر؟ اور پھر وہ اس مسئلے کے لیے کیا بتاتی ہے؟ کیا عالمی دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے افغانستان کے اوپر؟ نینا، اس قسم کی آوازیں ہم پچھلے کچھ سالوں سے، کچھ مہینوں سے بار بار سن رہے ہیں، رپورٹس بھی آ رہی ہیں، لیکن کچھ خاص آن دا گراؤنڈ افغانستان میں تبدیل نہیں ہو رہا. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا سے دباؤ بھی آ رہا ہے، رپورٹس بھی آ رہی ہیں، پاکستان کا آپریشن بھی چل رہا ہے، لیکن افغان طالبان کا جو موقف ہے وہ بھی بالکل تبدیل نہیں ہوا. وہ ابھی بھی ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ ابھی بھی اپنی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہونے دے رہے ہیں پاکستان کے خلاف. یہ وہ سوال ہیں جو پارلیمان میں رکھے جانے چاہیے، جیسے اعزاز بھی پہلے شو پہ کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ پارلیمان کے سامنے رکھیں، وہاں پہ اس پہ ڈیبیٹ ہو، پھر پالیسی بنے. ایک آخری بات ہے لینا، کیونکہ میرے خیال سے بہت ضروری ہے بار بار ڈیفرینشیٹ کرنا افغان طالبان اور افغان مہاجرین کے درمیان. ہماری جو پالیسی ہے افغان طالبان کے بارے میں وہ بالکل سخت پالیسی ہونی چاہیے. وہاں پہ ایک سٹیٹ ہے جو سپانسر کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے ٹیررزم کو، لیکن افغان مہاجرین، میں اس دن بھی ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی، وہ واپس جا رہے ہیں اپنے ملک میں، ان کے پاس آئی ڈی کارڈز نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے، انہوں نے پوری زندگیاں یہاں پہ گزاری، لیکن ان کے پاس آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں. اب وہ واپس جائیں گے، نہ وہ نوکری کر سکتے ہیں، نہ وہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے. ہمارے میں پڑھی تھی، یو این کی ایک رپورٹ تھی کہ افغانستان میں ایک سیویئر فوڈ کرائسس ہے، خاص طور پہ بچوں میں. تو ہماری جو افغان مہاجرین، جو ریفیوجیز کے حوالے سے پالیسی ہے لینا، وہ should be based on humanity and humane. آپ نے بالکل صحیح نکات اٹھائے بے نظیر، لیکن ہمیشہ اس کا جواب یہ آتا ہے افغان مہاجرین سے متعلق کہ تفریق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون اس میں شرپسند عنصر ہے، کون اس میں جینوئن مہاجر ہے یا کون ڈپرائیوڈ شخص ہے. اور آپ نے انٹرنل ایگریشن، ایکسٹرنل ایگریشن کی بات بھی کی کہ سینٹیمنٹس پاکستان کے خلاف ابھر رہے ہیں. میں چاہوں گی محمد علی صاحب اس کا جواب دیں، کیونکہ کچھ دنوں پہلے سلیم صافی صاحب نے بھی اس بات کا، یہ جو بدخشاں والی بات کر رہے ہیں اور دیگر چھوٹے گروہ، ہم اس کے اوپر واپس آتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ کے اندر. فخر، آپ بتائیے گا پہلے یہ جو عالمی فورمز پر اس وقت افغانستان کے اندر کس طرح سے تانے بانے ملتے ہیں، سہولت کاریوں کے، مختلف دہشت گردانہ کارروائیوں کے جو کنسرنز پائے جا رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی پہ، اور اس کو کھل کر اظہار ہو رہا ہے، یہ کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے اور کیا پاکستان کے لیے کوئی عملی یہ فائدہ بھی دے سکتا ہے یا یہ صرف آوازیں ہی ہیں؟ بہت شکریہ علینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے سفارتی محاذ کے اوپر کہ اب دنیا نے بھی وہ جو پاکستان کا موقف تھا نہ صرف اس کو تسلیم کیا، بلکہ اب اس کو جو ہے وہ ایک ریجنل سیکیورٹی ایشو کے طور کے اوپر جو افغانستان کے اندر صورتحال ہے اس کو دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے پاکستان جب یہ اس طرح کی کوئی موقف جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر رکھتا تھا تو اس کو
दो तरफा मामला जो है वो उसके तौर के ऊपर देखा जाता था कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आपस में कोई बाहमी जो मामला है उसको खुद ही रिजॉल्व करें। लेकिन अब आप देखें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से, यूएन से और उसके साथ साथ अब जो है वो यूरोपियन यूनियन और जो यूके की तरफ से भी ये जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसकी ना सिर्फ तईद की गई बल्कि इस चीज़ को रिकग्नाइज किया है कि दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर ना सिर्फ ये कि दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वो मजबूत हो रही हैं बल्कि ये रीजनल पीस के लिए खतरा हो सकती हैं। तो ये एक पाकिस्तान का सिफारती महाज के ऊपर तो एक बहुत बड़ी जो है वो विक्ट्री है, लेकिन सवाल ये है जो आप भी पूछ रही हैं कि क्या पाकिस्तान इसको ये जो एक सिफारती जो कामयाबी है उसको ट्रांसलेट कर सकता है एक मीनिंगफुल जो है वो कोऑपरेशन के लिए इंटरनेशनल खासतौर पे। देखिए अगर हम देखें जो माजी में यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जो भी जो टेररिज्म या उसके वॉर ऑन टेरर के हवाले से था तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती थी वो था इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म होता था इन ममालिक के दरमियान, चाहे वो नेटो हो या जो दीगर जो फोर्सेस के हवाले से। तो पाकिस्तान को मैं समझता हूं कि ये इस हवाले से भी कोशिश करनी चाहिए। ये जो वॉर ऑन टेरर या जो अब जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसके यहाँ पे सपोर्ट के हवाले से बेनजीर भी सवाल उठा रही थी कि ये कैसे पहुंच गई, क्या ये हमारा अपना सिक्योरिटी फेलियर है या नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर दहशतगर्दी का कोई वाकया होता है तो सवाल होने चाहिए और वो होते भी हैं। लेकिन जो दूसरी एक बात है कि क्या पाकिस्तान को जो एक अग्रेसर के तौर के ऊपर पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, जो पाकिस्तान की एक नई हिकमत अमली है कि जो दहशतगर्द तंजीमों के जो मराकज़ हैं या जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं पाकिस्तान उनको जो है वो टारगेट करेगा तो उसके बाद पाकिस्तान को एक अग्रेसर के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है। बयानिया के हवाले से अगर आप देखें अफगानिस्तान के अंदर जब ये तालिबान से पहले भी जो हुकूमतें थी, जब वहाँ पे अमरीकी जो फोर्सेस मौजूद थी और जो अशरफ गनी की हुकूमत हो या हामिद करज़ई की हुकूमत हो तो तब भी पाकिस्तान को कोई अच्छी उससे अफगानिस्तान के अंदर नहीं देखा जाता था और पाकिस्तान को ये कहा जाता था कि ये तालिबान के सपोर्टर हैं और तालिबान को ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप किसी भी सूरत में हो अफगान जो नेशनल्स हैं या अफगानिस्तान की जो अवाम है उसको खुश नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान का ये मकसद होना भी नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान की जो अवाम है वो कैसे खुश हो सकती है, अग्रेसर बन के होगी या वो तालिबान के पहले सपोर्टर के तौर के ऊपर पाकिस्तान को कहा जाता था। असल जो चीज है वो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी और उसके लिए जो पाकिस्तान कर सकता है मेरा ख्याल है कि ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तान को एफर्ट्स करनी चाहिए। जहां सफारती महाज के ऊपर ये चीजें शेयर की गई हैं पाकिस्तान की तरफ से, वहां पे ये इंटरनेशनल जो इनसे निमटने के लिए कोऑपरेशन के लिए भी पाकिस्तान को एफर्ट करनी चाहिए। तब भी ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से एक मीनिंगफुल मैं समझता हूं कि ये खात्मे के लिए वो किया जा सकता है, इकदाम उठाए जा सकते हैं। मज़ीद साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ये जो पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स अफगानिस्तान, असल चीज ये कि अफगानिस्तान जहाँ किस तरफ है और कराची हमेशा से टेररिज्म का और टेररिस्ट का हब रहा है और ये आज की बात नहीं है। कराची में जितने स्लीपर सेल रहे हैं शायद ही किसी और इलाके में इतने स्लीपर सेल रहे हों और वो स्लीपर सेल आज भी कहीं ना कहीं नजर आते हैं। ये अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि 2013 के बाद से चीजों में बहुत कमी आई है, टेररिस्ट अटैक्स कम हुए हैं, वरना तो बहुत ज्यादा हुआ करते थे टेररिस्ट अटैक और यहाँ से बहुत से नेटवर्क भी पकड़े गए हैं। जो टेररिस्ट जो अफगान यहाँ जो नेटवर्क्स काम करते हैं उन नेटवर्क के बारे में आपने जितनी तंजीमों को कलअदम करार दिया, उनके नेटवर्क्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे असला जो है वो लोगों के पास आ जाता है, कैसे जो है इस तरीके के स्लीपर सेल्स बन जाते हैं, कैसे जिस तरह का कराची का वाकया हुआ या बलूचिस्तान की सूरत हाल है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियों से हमारा दुश्मन फायदा उठा रहा है। उन कमजोरियों के बारे में हम क्लियर नहीं हैं। आज अमेरिका एक बयान दे देता है, कल अमेरिका का तालिबान के बारे में पोजीशन तब्दील हो सकती है, याद रखें। इसलिए कि अमेरिकन अपना इंटरेस्ट देखते हैं, अमेरिकन कोई आपका इंटरेस्ट नहीं देख रहे। आज आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, कल वो आपको अपोज भी कर सकते हैं। माजी में हमने देखा है ये सारी चीजें इस चीज में। तो असल चीज ये कि हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किस हद तक क्लैरिटी का शिकार हैं, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म से सबसे ज्यादा खतरा हमको है, हमारे शहरों को है, हमारे सूबों को है, जिसका निशाना मासूम लोग बनते हैं, हमारे सिक्योरिटी के एहलकार बनते हैं और मुतवातिर बन रहे हैं और हमें उसका जवाब नहीं मिल पा रहा। तो मेरा ख्याल है हमारा नैरेटिव में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आज हम अफगान तालिबान के बारे में क्लियर नजर आ रहे हैं, कल नहीं थे हम।
कल हम आज से चंद साल पहले तक हम अफगानिस्तान में होने वाली तब्दीली को वेलकम कर रहे थे। आज जिनको हम वेलकम कर रहे थे, आज वही हमारे गले पड़ गए हैं। तो हमें एक क्लियर पॉलिसी बनानी चाहिए और उस पे बिल्कुल जो है उस पे अमल करना चाहिए अनटिल अनलेस जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी। वरना अगर हम कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे, एक ग्रुप खत्म होगा, दूसरा ग्रुप आ जाएगा। यही प्रॉब्लम हमारी मुसलसल रही है। तो मेरा ख्याल है क्लैरिटी हमारे यहाँ जो है वो आनी बहुत ज़रूरी है इस पॉलिसी में। मोहम्मद अली साहब, क्या अभी भी आप समझते हैं कि क्लैरिटी का फुकदान है हमारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इन जनरल जो पॉलिसी है उसमें? और बताइएगा, ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर सहूलतकारी होती है दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की जो पाकिस्तान में होती हैं, हम ऑपरेशन भी कर रहे हैं इसके ख़िलाफ़, क्या ये जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है हमारी या पॉलिसी है हमारी, इससे हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं एंड में? देखिए, मैं मजहर भाई की इस बात से तो मुत्तफिक हूँ कि हमारी जो अफगान पॉलिसी है उसमें एक बड़ी जामिया और लॉन्ग ओवरड्यू तब्दीली तो आई है। और ये बात भी हकीकत पर मबनी है कि हम शायद किसी हद तक खुशगुमानी का शिकार अफगानिस्तान के हवाले से बहुत अरसे तक रहे हैं। और ये भी एक हकीकत है कि हमें 80 की दहाई में, 90 की दहाई में जो भी हमारे रवासिम थे उसमें थोड़ा सा मुहतात रवैया बरकरार रखना चाहिए था। और जिसका खमियाजा हमने और हम कई बार इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं। बट अब जब आप लोग ये समझते हैं कि क्लैरिटी आ गई है तो इससे आगे बढ़ते हैं। सर, ये थोड़ा सा हमें वाज़ेह कीजिए ना कि अब जो हुकूमत या अब जो दावा किया जा रहा है कि हमारी पॉलिसी में क्लैरिटी है, वो पॉलिसी है क्या, उसमें क्लैरिटी है क्या, और ये जो ऑपरेशंस हम कर रहे हैं इससे हम अचीव क्या करना चाहते हैं? जी, मैं वही वजाहत करना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक लॉन्ग ओवरड्यू रियलिटी चेक आया है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी है, मैं समझता हूं कि उसके 4-5 पहलू क्या हैं वो मैं आपके सामने बता देता हूं। और वो अभी तक जो गुफ्तगू हुई है उसमें से कई पहलुओं का जवाब भी दे देगी। पहली बात यह है कि जो हमारी जवाबी कार्रवाई है इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, वो हम दहशतगर्दी के जो मराकज हैं जहां से बराह रास्त वो तंजीमें या अफराद जो हैं वो जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं उनके खिलाफ क्रेडिबल इंटेलिजेंस की बेसिस पे ये जवाबी कार्रवाई की जाती है। ये और बात है कि वहाँ का मीडिया जो है वो उसको एक डिफरेंट पिक्चर देने की कोशिश करता है। दूसरी बात यह है कि हम कोई अफगान अवाम से या अफगान रियासत से जंग नहीं चाहते। हम इसको एक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जहां से, जिस मरकज से, जिस अड्डे से जो है हमारे खिलाफ हमला किया जाएगा, हम सिर्फ उसको टारगेट करते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है, जिस तरह आपने आज बुनियादी सवाल भी जो मेजर था, कि सिफारती सतह पे हमें बतदरीज इलाकाई और आलमी ताकतों की सपोर्ट हासिल हो रही है। और हम एक यूं समझें कि, और ये भी हमने मल्टीलैटरल और बायलैटरल लेवल पे इंगेज करने के बाद हमने एक सफारती दबाव बढ़ाया है। और किसी हद तक हम बतदरीज अफगान तालिबान को रीजनली और ग्लोबली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने में भी कामयाब हुए हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि उन पे सफारती दबाव बढ़ाना जरूरी है उनको एक रियलिटी चेक देने के लिए, उनकी पॉलिसी में तब्दीली लाने के लिए। तीसरा पहलू ये जो है, जो अनफॉर्चुनेटली इलीगल, क्योंकि उनकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, दुनिया के साथ उनके फॉर्मल ट्रेड रिलेशंस नहीं है, तो इसकी वजह से उनका बहुत बड़ा इन्हिसार बदकिस्मती से क्रिमिनल और स्मगलिंग के नेक्सस के साथ है। तो तीसरा पहलू उसका माशी जो स्मगलिंग का खात्मा है और क्रिमिनल के साथ जो उसका नेक्सस है, उसमें भी काफी इक़दामात किए गए हैं, जो कि एक तरह से माशी दबाव भी उनके ऊपर डला है। और चौथा पहलू जो है वो माशरती है कि जो इलीगल अफगान्स हैं उनको अब हम वापस भेज रहे हैं। ये उसका चौथा पहलू है। पांचवा पहलू ये है कि अलबत्ता हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है, अगर एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे
बिहेव करे और दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही सरपरस्ती बंद कर दे तो डेफिनेटली हम उसके साथ ट्रेड रिलेशन, सीपैक को एक्सटेंड करना, ये सब चीजें ऑन द टेबल हैं। लेकिन बुनियादी अगर टू कंक्लूड हमारी पॉलिसी का जो महवर है वो ये है कि ये नहीं हो सकता कि पिछले सालों के दौरान हजारों पाकिस्तान के अंदर जो शहादतें दहशतगर्दी के नतीजे में अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रही हैं और हम स्टेटस को बरकरार रखें और उसी तरह इसको एक नॉर्मलाइज करें। तो असल बात यह है कि न्यू नॉर्मल ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, नो नॉनसेंस एटीट्यूड है। हम इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, सोशल पूरे पैनल से एक सवाल करना चाहती हूं को साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं। लेकिन आखिरी बात ये अलबत्ता हकीकत है कि हमारे प्रोविंसेस और सेंटर और स्टेट के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने की जरूरत है और उसमें इक़दामात किए भी जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक पूरे पैनल से सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि हम यहाँ पर मुख्तलिफ इंट्रोस्पेक्शन और पॉलिसीज़ की भी बात की। क्या हम हमारी पॉलिसीज़ दुनिया को ये बावर करवाने में कामयाब हुई हैं या कुछ ना कुछ अचीव किया है कि ये पाकिस्तान का आइसोलेटेड मसला नहीं है, अफ़गानिस्तान और वहाँ से उठने वाली दहशतगर्दी ये एक ग्लोबल मसला है और बन सकता है? क्योंकि इस वक्त तक जो मैसेजिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जिक्र है, टेररिज्म एज अ ग्लोबल थ्रेट हाईलाइट नहीं हुआ। जो भी जवाब देना चाहे। नहीं अलीना, इस पे अब जो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आया है, बात हुई है कि ये सिर्फ एक रीजनल नहीं बल्कि ये ग्लोबल टेररिज्म के लिए दोबारा से खतरा पैदा हो सकता है। खासतौर के ऊपर जो वो तंजीमें जैसे दाइश है, अलकायदा है, वो रीग्रुप होके वहां पे जो है वो मजबूत हो रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, बल्कि दुनिया अब दोबारा से ये इस खतरात के हवाले से भी आगाह कर रही है कि ये ग्लोबल दोबारा से पाकिस्तान का जो है वो एक खतरा बनता जा रहा है। जी बेनजीर कुछ कहना चाह रही है? ये जो आपको याद है वो जो यूनाइटेड नेशंस की भी जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी यही लिखा हुआ था कि ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अंदर अलकायदा भी है, दाइश भी है और ये बाकी सारी तंजीमें जो कोऑर्डिनेट भी करती हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट भी करती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफी क्लैरिटी है दुनिया में कि ये एक सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ग्लोबल थ्रेट है टेररिज्म का। ठीक है जी, विद दैट बल्कि अगर एक जुमला अलीना आपकी इजाजत से इसमें ऐड में कर दूं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की लास्ट ईयर रिपोर्ट आई थी उसमें तो ये बिल्कुल फ्रैंकली तशवीश का इजहार किया गया था कि दाइश और अलकायदा का इन्फ्लुएंस और पेनिट्रेशन इवन अफगान तालिबान के महकमे दिफा और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी है। ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, आते हैं वापस यूट्यूब सवालों के साथ। वेलकम बैक। तजियाकारों से यूट्यूब पर भेजे गए आप लोगों के सवाल, उनके जवाब जानते हैं। बेनज़ीर से सवाल करते हैं। कुछ रोज़ पहले सरगोदा में वाक़या पेश आया, बड़ा ही दिलखराश वाक़या, 7 साल बच्ची से मुबैना रेप और फिर उसका कत्ल हो जाना। इसके ऊपर मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने कहा है कि सरगोदा वाक़े में 7 साल बच्ची की बेहुरमती की गई, दिलखराश वाक़या था। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन वालिदैन भी छोटे बच्चों को बाहर अकेला ना भेजें। लोग अपने बेटों और मर्दों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, इस पर भी तवज्जो देना होगी। आपकी नज़र में क्या है, बयान दुरुस्त है वज़ीर आला का? अलीना, इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि वालिदैन की कुछ जिम्मेदारियां ज़रूर बनती हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, हम पहले भी उससे बात कर चुके हैं कि घर में एक ओपन कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए वालिदैन और बच्चों के दरमियान कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन आपकी कंपनी कौन है। हमारे घरों में अक्सर जो होता है खौफ का माहौल होता है, बच्चे अक्सर बात नहीं करते वालिदैन से। और इस किस्म के जो हमने केसेस देखे हैं, बार बार रेप के केसेस हो, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हो, उसमें जो परपेट्रेटर होता है वो होता ही या तो कोई जानने वाला होता है इस बच्चे का, या कोई ऐसा शख्स होता है जिसने उस बच्चे के साथ या बच्ची के साथ जो है कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाया होता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपने बेटों की और जो मर्द हैं जनरली उनकी भी, उनको हमें तरबियत उनको कि किस तरह औरतों से बात करनी चाहिए, क्या किस तरीके से कंसेंट की बात करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं सारी जिम्मेदारी जो है वालिदैन पे नहीं डालूंगी। यहाँ पे हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक सेफ पब्लिक स्पेस बनाएं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, खवातीन के लिए भी, कि वो बाहर जाके बच्चे जो हैं वो खेल सकें, वो पढ़ने जा सकें, वो दुकान पे जा सकें। हम औरतें जो है हमारे
हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप और मैं अलीना अगर अकेले वॉक कर रहे हो तो पीछे गाड़ियां लग जाती हैं। आप रात को तो हम सोच भी नहीं सकते कि अकेली औरत जो है अपने घर के बाहर भी वॉक कर रही हो। तो ये माहौल जो है, ये पब्लिक सेफ्टी का जो एनवायरनमेंट है, ये तो हुकूमत ने ही बनाना है ना। बिल्कुल, मुझे याद है अब हम बाहर थे, वहां पे हमारे कोई जानने वाले थे, उनके बच्चे पार्क जा रहे थे, तो उन्होंने कहा आप अपनी बेटियों को भी भेज दें पार्क, वॉक करके चले जाएंगे बच्चे। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा वो वॉक करके अकेले बच्चे पार्क जाएंगे, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है, हम यहाँ पे घबराते हैं। वहां पे भी इस किस्म के वाकयात होते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे जो दोनों माँ बाप होते हैं दोनों काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे जो हैं वॉक करके जाते हैं, बस पकड़ते हैं, स्कूल जाते हैं, वॉक करके जाते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं, क्योंकि वहां पे एक जनरल सेंस ऑफ सेफ्टी है जो हमें बहुत जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे सिंगल मदर्स हैं, वो सारा दिन तो बच्चों पे नजरें नहीं रख सकती, उन्होंने जाके काम करना होता है, उन्होंने घर का खर्चा चलाना होता है, वो बच्चों को उनको भेजना पड़ता है कि जाओ जाके दुकान से कुछ ले आओ, या जाओ जाके किसी से बात कर लो, या बाहर जाके देख लो। अब उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत सी औरतें जो हैं जब काम पे जाती हैं तो किसी के घर उनको बच्चों को जाके अपने छोड़ना पड़ता है। और अगर यहाँ भी हो तो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए छोटी मोटी इतनी तो लिबर्टीज देनी होती हैं। तो उसके लिए एनवायरनमेंट, आपके घर के बाहर का एनवायरनमेंट। एक आखिरी बात करूंगी लीना, मुझे याद है स्कूलों की भी मैं कहूंगी जिम्मेदारी जरूर बनती है यहाँ पे। हम ज़ैनब का जब केस हुआ था तो बहुत बातें हुई थी, गुड एंड बैड टच की, स्कूलों में बातें हो रही थी, घरों में, मीडिया में बात हो रही थी, और फिर खत्म ही हो गई, कोई खास उस पर बात नहीं हुई। तो ये चीजें हैं जो बार बार इन्फोर्स करने की जरूरत है। रेप के मैं उस दिन कन्विक्शन के केस वो पढ़ी थी कि क्या रेट्स है पंजाब में। कन्विक्शन रेट रेप केसेस का 4% है, कुछ भी नहीं है। ये सेनेट की कमेटी को उन्होंने रिपोर्ट दी है। खैबर पख्तूनख्वा में 6% है, सिंध में 22% है। तो ये चीजें हैं देखने वाली कि आप सिर्फ ये कहे नहीं कि औरतें और बच्चे मेरी रेड लाइन है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, आप करके दिखाएं। कोई भी ये करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसकी कन्विक्शन होगी। बड़े अरसे पहले मुझसे किसी ने पूछा कि बाहर जब आप पाकिस्तान से जाती हैं तो आपकी फेवरेट पार्ट क्या है, आप क्यों जाती हैं? तो मेरा जवाब ये था कि वो जो लिबर्टी होती है ना चलने की, और ये किसी मर्द ने मुझसे सवाल किया तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि बस जाकर बाहर कुछ ना करना, कोई इंजॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं। सड़क के ऊपर वो जो एहसास है ना कि आप अकेले रात दिन कोई भी मौसम अकेले चल सकती हैं, एक खातून कुछ भी पहना हो, कुछ भी किया हो, एक वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, वो एहसास एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो लिबर्टी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा बेनज़ीर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक और वाक़या हुआ काना के अंदर, जहाँ एक ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर मुख्तलिफ़ तहकीकात भी हो रही हैं, अभी कुछ एक्शन भी हुआ है, और उन एक्शंस में से एक ये है जो आज अनाउंस किया गया कि मुख्तलिफ जो गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन किया जाएगा, उनके ऊपर शायद उनको बैन भी करना है, पाबंदियां भी लगानी हैं, और कोई 760 बताई जा रही हैं जिनको बंद कर दिया गया है। आपके ख़्याल में ये जो इक़दामात हो रहे हैं ख़ासकर इस इशू को टैकल करने के लिए, क्या ये दुरुस्त तरीका है या डायरेक्शन सही है? अलीना, पाबंदी नहीं है। जो मुझे समझ आई है जो मिनिस्टर है एजुकेशन की, वो कह रहे हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाए। जो डीसीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं, उनसे आप फिटनेस सर्टिफिकेट लें और फिर आप अपनी एकेडमी चला सकते हैं। बिल्डिंग्स फिटनेस सर्टिफिकेट लें, फिर उसके बाद आप अपनी एकेडमी चला सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी इस वक्त इस किस्म की इम्प्लीमेंटेशन कोई बुरा आइडिया नहीं है। मेरे ख्याल से इस किस्म की होनी चाहिए, चेक बैलेंसेस होनी चाहिए, बट आई डोंट नो ये कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकेडमीज़ हैं, हर जगह है, ट्यूशन सेंटर्स हैं, तो इम्प्लीमेंट करना इसको बहुत मुश्किल होगा। लेकिन चलें, इट्स अ गुड स्टार्ट। बेनज़ीर, ये जो बिल्डिंग की मेंटेनेंस है या इससे मुतालिक फिटनेस से मुतालिक सर्टिफिकेट्स हैं, क्या ये हाँ एग्जैक्टली क्या ये डेवलपमेंट अथॉरिटी का के जुमरे में नहीं आता? ये प्राइवेटली इंस्टीट्यूट से जाके क्यों पूछा जा रहा है, या उनके खिलाफ क्यों क्रैकडाउन हो रहा है? ये ज्यादातर बात हो रही है रेजिडेंशियल एरियाज की, कमर्शियल एरियाज की बहुत कम है। ये ज्यादातर जो रेजिडेंशियल एरियाज में मैं क्योंकि उनका बयान सुन रही थी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का, उन्होंने कहा है जो रेजिडेंशियल एरियाज में ट्यूशन सेंटर्स, एकेडमीज वगैरह होती हैं, उनको उनके ऊपर जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनसे फिटनेस सर्टिफिकेट मांगेगी, फिर उसके बाद वो, और ये मेरे ख्याल से सितंबर से कहा जा रहा है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन का जो है काम शुरू हो जाएगा। अच्छा चलें देखते हैं फिर इसके आगे क्या होता है, फिर इसके वो बात भी करेंगे। थैंक यू सो मच बेनज़ीर, दोनों सवालों का जवाब देने के लिए, अपनी राय का इजहार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फ़खर दुरानी साहब,
آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے انتخابات کے مشروط بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. کہا ہے کہ حالات سازگار ہونے کی صورت میں فیصلہ واپس لے سکتے ہیں. کیا یہ فیصلہ یا حکمت عملی درست ہے؟ آلسو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ علینا، جو فیصلہ کرنے کی جو ضرورت ہے، خاص طور پہ اگر موسٹ ریسنٹلی دیکھا جائے گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے کچھ تحفظات تھے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو فری جو ہے وہ کیمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور دیگر جو ہے وہ خاص طور پہ انتخابی جو سرگرمیوں کے حوالے سے بھی جو وہ ایک فری موومنٹ کا ہے وہ ایشوز تھے. تو اس بنیاد کے اوپر یہ پی ٹی آئی کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور مشروط جو یہ بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے اس کے پیچھے ریزن تو یہی بتائی جا رہی ہے. لیکن کیا یہ حکمت عملی درست ہے یا نہیں ہے؟ ہم پچھلے 4 سالوں میں دیکھیں، 2022 میں جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے اس طرح کے 2-3 ایسے اقدامات اٹھائے اور فیصلے لیے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تمام تر جو فیصلے تھے وہ غلط ثابت ہوئے ان کے. اور ماضی میں بھی دیگر اگر آپ دیکھ لیں تو کبھی بھی جو پارلیمانی جو خاص طور کے اوپر جو سیاست ہے اور جو پارلیمنٹ کے حوالے سے اس کا بائیکاٹ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کے عمران خان کی حکومت جانے کے بعد یہاں سے اسمبلیوں سے ریزگنیشن، وہ اس کے بعد یہ خود پی ٹی آئی والے، ایون عمران خان بھی یہ کہتے رہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے باہر چلے جانا اور حکومت چھوڑ دینا، پنجاب سے چلے جانا. اس کا بھی بعد میں انہوں نے ان کے اپنے دیگر جو مختلف رہنما تھے انہوں نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ تھا. تو یہ اس طرح کی جو بائیکاٹ کی جو سیاست ہوتی ہے وہ کسی طور کے اوپر بھی درست ثابت نہیں ہوتی. ایک چیز تو اس سے یہ ہے کہ آپ ایک مؤثر جو ریپریزنٹیشن ہے کسی بھی ریجن کی، صوبے کی ہو یا ایون وفاق کے حوالے سے، اس سے اپنے ووٹرز کو محروم کر رہے ہیں، اپنے سپورٹرز کو محروم کر رہے ہیں کہ ان کی آواز پارلیمان تک اور جو پالیسی ساز جو ہے ادارہ ہے پارلیمنٹ، اس سے آپ محروم کر رہے ہیں. تو ایک پہلی چیز یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ اپنے جو سیاسی حریف ہیں اور مخالفین ہیں ان کو فری ہینڈ دے رہے ہیں کہ آپ جائیں، آپ جیت جائیں اور آپ اپنی من پسند جو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے وہ سارا کچھ کریں. تو یہ ایک جمہوری دور میں کسی میں بھی یہ فیصلہ کسی طور کے اوپر درست نہیں ہوتا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جو الیکشنز ہیں اس سے بائیکاٹ کرے، چاہے وہ جزوی ہو یا فل جو بائیکاٹ ہو. فخر درانی صاحب، کیا یہ کشمیر سے متعلق جو تحریک انصاف کی گریوینسز ہیں وہ جائز ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ان کو بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے صورتحال کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے؟ علینا، یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ ماضی کی جو ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ کشمیر میں ابھی تو فی الحال دیکھیں تو وہ جو الیکشن کیمپین ہے وہ اس طرح پراپرلی شروع نہیں ہے. ابھی نامینیشن پیپرز وہ ہوئے، اور کشمیر میں ہم نے دیکھا جو پروٹیسٹ وغیرہ چل رہے تھے تو اس پہ کسی سیاسی جماعت نے ابھی اپنی یہ جو الیکشن کیمپین ہے وہ شروع ہی نہیں کیا. اور اس سے پہلے ہی یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اس طرح کا فیصلہ کر لینا، یہ میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ایک تو اس کا جو پی ٹی آئی کا وہاں پہ ووٹر اور سپورٹر ہے وہ بھی ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا کہ کیا ان کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے نہیں لے رہی. ان کے پھر جو امیدواران ہیں وہ بھی، ان کے لیے بھی یہ ایک کوئی اچھی اور آئیڈیل صورتحال نہیں ہے. تو اس لیے آپ پہلے یہ اس طرح پہلے سے ہی فیصلہ کر لینا یا جزوی طور کے اوپر بائیکاٹ کے حوالے سے بجائے اس کے کہ آپ پہلے ٹیسٹ کرتے کہ کیا آپ کو وہ فری وہ دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا. تو اس لیے یہ آپ لاسٹ موومنٹ کے اوپر بھی اس طرح کا وہ کر سکتے تھے، لیکن پہلے سے یہ اس طرح کی کنفیوژن اور اپنے ووٹر اور سپورٹر اور اپنے جو امیدواران ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنے کی آپ کو وجہ کیا لگتی ہے؟ کیا، اور وجہ سے مراد میرا سیاسی طور پر وجہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف وکلاء نہیں، اب کافی ان کو سیاسی ایکسپیرینس بھی ہو گیا ہے، دیگر سیاسی قیادت بھی ہے جو کہ ان کی مدد کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے. اسٹریٹجی یا حکمت عملی یا منطق کیا نظر آتی ہے تحریک انصاف کی؟ علینا، جو اسٹریٹجی اور منطق ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے عمران خان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے. اور عمران خان کا اگر آپ پچھلی سیاست کو دیکھ لیں، ان کی ایک ہی سمت میں ہمیشہ سے یہ ڈائریکشن ہے کہ آپ اپنے جو مخالف اور جو حریف ہیں ان کو دباؤ میں ڈال کے اپنی جو فیور میں فیصلہ لینا. اب یہ جو اس طرح کی ریزگنیشن کے حوالے سے ہے
माजी में भी इमरान खान ने ये रेजिग्नेशन का हो या इस तरह का वो दबाव डालने के लिए अपने जो हरीफ हैं उनको दबाव में रखने के लिए और दबाव में उनसे अपनी हक में कोई फैसला लेने के लिए ये इस तरह के जो है वो फैसले किए जाते रहे। लेकिन हमने देखा है कि ये तमाम तर जो इस तरह की हिकमत अमली थी पहले भी नाकाम हुई। आप देख लें जितना 2014 का जब धरना हुआ था उस टाइम भी जो पीटीआई के जितने कोई अरकान थे उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया था और उसके बाद फिर हमने देखा कि वो खुद ही इन्होंने अपने जो रेजिग्नेशन थे वो वापस ले लिए। फिर उसके बाद आप देखें इनकी हुकूमत के बाद भी तो ये जो इसके पीछे मंतक और जो हिकमत अमली है वो तो यही है कि अपने जो सियासी मुखालफिन और जो हरीफ हैं उनको दबाव में डालना है और दबाव में आके अपने हक में फैसला लेने के हवाले से। लेकिन ये बार बार वही बात है कि सियासी जमातें जो हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और गलतियों से सीख के जो है वो अपना जो फैसले हैं वो दुरुस्त करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि पीटीआई बिल्कुल तो पीटीआई हमेशा से एक ही जैसी जो है वो हिकमत अमली अपनाती है, फिर उसमें नाकाम होती है, फिर उसके बाद वही उसी तरह की गलती दोबारा रिपीट करती है। अच्छा फ़खर साहब, आपका ताल्लुक़ लिया से है और मैंने आज ही सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी है। पंजाब में हम देख रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो हुकूमत पंजाब है वो उनको मॉडिफाई कर रही है, बड़ी लैंडस्केपिंग के ऊपर काम हो रहा है, खूबसूरत कर रही है मुख्तलिफ फेमस बाज़ारों को। तो लिया की एक ऐसी वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, मेरे दिल का एक सवाल था। मैंने कहा आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके पास आज़ाद ज़रिए से आती भी होगी इन्फॉर्मेशन, ये जो वीडियोज़ हैं ये वाकई में ऐसा काम हो रहा है ज़बरदस्त, एस्थेटिकली प्लीजिंग काम हो रहा है, या फिर ये कोई एंगल्स ऐसे हैं या फोटोग्राफी का कमाल है जो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये एक अलग और नई और जदीद लुक निकल के सामने आ रही है? अलीना, ये मैं खुद भी इस पे काफ़ी दिनों से ये चाह रहा था बात करने का। मैं अभी रिसेंटली गया था ईद की छुट्टियों पे। अच्छा। तो मैं क्योंकि यहाँ से जाता हूँ तो 3-4 अजला जो हैं वो पंजाब के वो गुजर के लिया तक पहुँचता हूँ। तो आप यहाँ से मियांवाली जाएं, भक्कर जाएं, फिर उसके बाद लिया, आप जहाँ से भी गुजरें तो ये इस तरह की जो खासतौर के ऊपर जो लैंडस्केपिंग के हवाले से आप बात कर रही हैं, ब्यूटीफाई करने के हवाले से, ये तीनों शहरों में आपको नजर आएंगे। ये जो कंसीडर किए जाते हैं ये पंजाब के खासतौर पे ये पसमानदा जो इलाका जो है वो कंसीडर किए जाते हैं जनूबी पंजाब के हवाले से। तो इसमें नो डाउट के जो ब्यूटीफाई करने के लिए या शहरों की थोड़ी सी एस्थेटिक जो है वो एक उसको बेहतर करने के हवाले से पंजाब के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है। फिर उसके साथ साथ जो सफाई के हवाले से आप सुबह 5 से 5:30 के दरमियान गुजरा तो उस टाइम भी मैं हैरान रह गया कि वहां पे ये जो सुथरा पंजाब का सफाई के हवाले से जो इंतजामात हैं, लोग उस टाइम भी सड़कों को जो है वो साफ कर रहे थे। ये पहले कॉन्सेप्ट इस तरह का नहीं था। अच्छा, अर्बन एरियाज में तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन जो रूरल एरियाज गांव देहात हैं उसमें ये नहीं होता था। अब तो गांव देहातों में भी जो है वो कचरे के लिए अलहदा से आपको जो इन्होंने वो इंस्टॉल किए हुए जगह वो किया हुआ है, वहां से रोजाना उनकी टीम आती है, वो ये सारा कुछ ले जाती है। कि लोगों के कुछ इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि आप ये चार्ज कर रहे हैं इसके हवाले से, लेकिन मैं समझता हूं कि ये 300-400 या वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। इसके बदले में अगर आपका शहर, आपका देहात जो है वो साफ सुथरा रहता है तो ये कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है। लेकिन नो डाउट इसमें कोई काम हो रहे हैं और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से। लेकिन जो मेन चीज जो मैं समझता हूं इनको जरूरत है, खासतौर पे जो कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, लोगों को रोजगार के हवाले से, उसके ऊपर भी इनको तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि ये जो आप ये बता रही हैं ना एस्थेटिक वगैरह का, ये तो ठीक है कि आप इसके ऊपर एक खर्च कर रहे हैं अरबों रुपए, लेकिन वही बात है कि आप एक तो सिविक सेंस क्या लोगों को दे रहे हैं कि क्या उसको कोई हुकूमत ये चली जाती है वो उसके बाद भी ये इस तरह की इसकी जो ब्यूटिफिकेशन है वो मेंटेन रहेगी, सफाई इसी तरह रहेगी या नहीं रहेगी? क्या लोग वो उसी जो एक जगह है उसके ऊपर जाके कूड़ा फेंकेंगे या उसके बाद फिर उसी तरह कूड़े के ढेर शुरू हो जाएंगे? ये वो चीजें हैं, उसके ऊपर भी इनको जो मैं समझता हूं कि स्कूल एजुकेशन से इनको वो देने की जरूरत है। दूसरी एक चीज मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, आपके ही प्लेटफॉर्म से हमने एक दफा वो किया था मेडिकल कॉलेज के लिए और उस पर ऐलान भी किया था जो वजीर आला थी, लेकिन उसके बाद 1 साल से ऊपर हो गया, कोई उसके ना बजट का अनाउंस किया गया है, ना ही उसके ऊपर कोई फर्दर जो है वो काम हुआ है। तो ये जस्ट एक ऐलानात की हद तक इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसको ऐलान कर देना, वो एक मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अमली तौर के ऊपर भी कोई इकदाम होने चाहिए, बजट एलोकेशन के हवाले से भी। जी ठीक है जी। ये जो एस्थेटिक मंसूबे हैं अच्छे तो बड़े लग रहे हैं और होने भी चाहिए डेफिनेट।
फ़खर दुरानी साहब ये समझते हैं और कह रहे हैं कि जो दीगर इश्यूज़ हैं आवाम के, उसकी तरफ भी प्लीज़ तवज्जो दें साथ साथ। और एक मेडिकल कॉलेज का उन्होंने हवाला दिया लिया में, जिसका ऐलान भी हुआ था, उसके ऊपर अभी तक उनकी रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो प्लीज़ उसके ऊपर भी देखिए क्या हो सकता है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।